افغان طالبان نے بھارت کی شہ پر پاکستان پر حملہ کیا، مجبوراً بھرپور جوابی کارروائی کرنی پڑی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغان عبوری حکومت کو جائز شرائط پر بات چیت کی پیشکش کر دی۔ تمام تر کوششوں کے باوجود افغانستان نے امن کو ترجیح نہیں دی اور جارحیت کا راستہ اپنایا۔ جب پاکستان پر حملہ ہوا تو افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے تھے۔ افغانستان کی درخواست پر 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کی گئی۔ اگر مہلت کے لیے ایسا کیا گیا تو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ دوست ممالک بالخصوص قطر کی جانب سے معاملات حل کروانے کی کوششوں کی بھی تصدیق۔ عارضی جنگ بندی کے باوجود افغان سرحد سے در اندازی کی کوشش، پاک فوج کی کامیاب کارروائی میں 45 سے 50 دہشت گرد مارے گئے۔ فورسز نے خفیہ اطلاع پر ایکشن لیا، کئی دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ 13 سے 15 اکتوبر کے درمیان خیبر پختونخوا میں 34 خوارج ہلاک، شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنواو میں 18، جنوبی وزیرستان اور بنو میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشنز عزم استحکام کے تحت کیے گئے۔ کامیاب کارروائیوں پر صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اقوام متحدہ نے ایک بار پھر افغانستان میں القاعدہ، ٹی ٹی پی اور فتنہ الخوارج کی موجودگی کی تصدیق کر دی۔ نگراں ٹیم کی رپورٹ سلامتی کونسل میں پیش۔ افغان حکام نے القاعدہ، کالعدم ٹی ٹی پی، فتنہ الخوارج کو کھلی چھوٹ دے دی۔ فتنہ الخوارج کے 6000 جنگجوؤں کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل۔ القاعدہ کے تربیتی مراکز میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف۔ چین کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم، دونوں ممالک کے تعلقات میں مسلسل بہتری کے لیے تعمیری کردار کی پیشکش۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ، عراقی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ایف بی آر نے کراچی سے افغان ٹرانزٹ ریٹ غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دی۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے تمام ٹرمینلز پر کلیئرنس روک دی گئی، کنٹینرز کی قطاریں لگ گئیں۔ کشیدہ صورتحال کے باعث تورخم اور چمن بارڈر 5 روز بھی بند۔ کوئٹہ سے چمن جانے والی ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے تمام کیمپس ختم، وزارت سیفران نے زمینیں اور غیر منقولہ اثاثے فوری صوبائی حکومت کو حوالے کرنے کی ہدایت کر دی۔ تو دیکھیے، جب ایک طرف فلسطین کا مسئلہ حل ہو رہا ہو، پوری دنیا کے اندر ایک دوسرے کا جشن منایا جا رہا ہو، فلسطینی خود کہہ رہے ہوں کہ مسئلہ حل ہو گیا، امن قائم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، تو پھر پاکستان کے اندر اس جماعت کو کیا حق حاصل تھا کہ یہ باہر نکل کر جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں؟ حکومت کا جلاؤ گھیراؤ اور امن تباہ کرنے کی کسی صورت اجازت نہ دینے کا دو ٹوک اعلان۔ فلسطین کے حق میں یہ ایک ایسا احتجاج تھا جس میں جدید ہتھیار، خنجر اور چاقو اٹھائے لوگ شریک ہوئے۔ عطا اللہ تارڑ کا سوال، مظاہرین ہر بار نئی شرائط لے کر آئے، قاتلوں اور دہشت گردوں کی رہائی کے مطالبات کیے گئے۔ ٹی ایل پی سے آخری منٹ تک مذاکرات ہوئے لیکن وہ مانے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مذہبی جماعت کے احتجاج کی تفصیلات بتا دیں۔ ہر دفعہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی۔ کیا ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی کاز فلسطین تھی، یا وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو
जेल से रिहा कराए जाएं, एक दहशतगर्द है उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? पंजाब हुकूमत का वफाक से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत गैर मामूली इजलास में 2 सीनियर वकला, स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती और गैर कानूनी असलहा रखने की सजा बढ़ाने की मंजूरी। बानी के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का भी फैसला। पंजाब में दंगा फसाद फैलाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन, गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 3480 हो गई। एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर ने 11 मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पंजाब भर में 18 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज। सूबे में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की काविशें। वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में दोनों जमातों के वफूद भी मौजूद थे। वजीर आजम की सुहेल आफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मुल्की मफाद में मिलकर चलने की भी यकीन दहानी करा दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अरियाला जेल जाने की कोशिश। सुहेल आफरीदी को दाहगल नाके पर रोक लिया गया। बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। 9 मुंतखब वजीर आला का बानी से मुशावरत के बाद काबीना तश्कील देने का ऐलान। अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से वसीयत वज़ीर आला 4.5-5 करोड़ लोगों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में मरकजी हुकूमत और उन लोगों को जो मुलाकात रोक रहे हैं उनको ये एहसास करना चाहिए कि सूबे का वज़ीर आला। पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत को 18 नवंबर तक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी से रोक दिया। सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत दरखास्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 40 अरकान ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। 7 कमेटी चेयरमैन भी शामिल। पार्लिमानी उमूर ठप हो जाने का खदशा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गजा में जंगबंदी पर सदर ट्रंप समेत दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। मेरी जगह खुद को रखकर सोचें कि आप गजा जंग बंद कराने वालों को सलाम ना करते। वजीर आजम का सवाल। गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अपना फर्ज अदा किया। वजीर आजम का IMF का स्टाफ लेवल मुआहदे पर अपनी टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की मुलाकात। वजीर आजम ने मज़ाहिब, अकायद और तहजीबों के दरमियान बाहमी एहतराम और अफ़हाम व तफ़हीम के फ़रोग़ में तंजीम के किरदार को सराहा। कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है। सब ने मिलकर माशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब। सिंपोजियम में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अल करीम अल ईसा की भी शिरकत। बरवक्त और सस्ते इंसाफ की फराहमी माशरे में इस्तेहकाम का बाइस करार दे दी। मुसावात और इंसाफ की फराहमी मुआशरे में बुनियादी अहमियत की हामिल है। आईन पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब। बलूचिस्तान काबीना ने दफा 144 के निफाज के इख्तियार में तरमीम की मंजूरी दे दी। डिप्टी कमिश्नर 30, कमिश्नर 60 और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला 90 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर सकेंगे। बलूचिस्तान काबीना ने माइंस एंड मिनरल्स सेक्टर को सनत का दर्जा भी दे दिया। NHA का लियारी एलिवेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लागत $1 अरब से बढ़ने का खदशा और इंकशाफ। सिर्फ पहले फेज की लागत $30 करोड़ तक पहुंच गई। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी इक़्तिसादी उमूर को ब्रीफिंग।
बहरिया टाउन मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत। इस्लामाबाद की अदालत ने 2 मुकदमात में मलिक रियाज और बेटे को इश्तिहारी करार दे दिया। मलिक रियाज और दीगर इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड्स और मोबाइल फोन सिम्स भी ब्लॉक करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार हारून रशीद को अपने मद्दे मुकाबिल तौफीक आसिफ पर नुमाया बरतरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। सियालकोट में 5 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तार। जुर्म के शवाहिद मिटाने के इल्जाम में मुल्जिम के वालिदैन को भी धर लिया गया। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में घर से गैर मुल्की शख्स की लाश बरामद। पुलिस ने लाश को पेंस अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के बाद 10 रोज कबल अगवा शहरी को बाजियाब करा लिया गया। फैसलाबाद में जमीन के तनाजे पर असलहा लहराकर शहरी को धमकियां देने वाली खातून गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करके असलहा बरामद कर लिया गया। कोयटा के इलाके भूसा मंडी में घर में गैस लीकेज से धमाका। खातून जाँ बहक, 5 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। सिंध फूड अथॉरिटी का कराची में गुलशन एमएमआर साइट सुपर हाईवे में कायम वाटर प्लांट पर छापा। पानी का टैंक जंग आलूद और गंदगी के ढेर पाए जाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। कराची के इलाके लियारी में मखदूश करार दी गई इमारतें मिसमार करने का ऑपरेशन जारी। 60 गज के प्लॉट पर 7 मंजिला इमारत तामीर की गई थी। कराची में बच्चों का दूसरा बड़ा अस्पताल 2 माह से बंद। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल नॉर्थ कराची के मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिल सकी। अस्पताल की बंदिश से मुख्तलिफ संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीज बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। पेशावर में नान बाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। 80 ग्राम की रोटी 20 और 160 ग्राम की रोटी 40 रुपए की हो गई। मुल्क भर में सोना मजीद महंगा। 1900 रुपए इजाफे से फी तोला कीमत 4,42,800 रुपए हो गई। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में गैर मामूली सर्दियों की खबरों की तरदीद कर दी। दिसंबर से फरवरी तक मामूल से कदरे कम या नॉर्मल दर्जा हरारत मुतवक्के। पाक फौज और काजाकिस्तान की अफवाज के दरमियान स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराग में मुश्तरका मश्क। दोस्त तालीम 5 जारी। दोनों ममालिक के दस्ते एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। ट्रंप की यकीन दहानियों के बावजूद गजा में खून बहना बंद न हुआ। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां। मजीद फलस्तीनी शहीद। मुआहदे के बाद से 23 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। मलबे से मजीद 22 लाशें भी निकाल ली गईं। इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 67,967 हो गई। हमास की जानिब से मजीद 2 यरगमालियों की बाकियात रेड क्रॉस के हवाले कर दी गईं। 30 फलस्तीनियों की मैयतें भी गजा हुक्काम के हवाले कर दी गईं। इसराइल अब तक 120 फलस्तीनियों की मैयतें वापस कर चुका है। पाकिस्तान और भारत एक और मैदान में एक बार फिर आमने सामने। रिवायती हरीफों के फाइटर्स दुबई में होने वाले बड़े मुकाबले में एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली 23 अक्टूबर को भारतीय हरीफ राणा प्रताप सिंह से मुकाबला करेंगे। श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तानी टीम में शामिल फास्ट बॉलर डियाना बेग की सालगिरह। साथी खिलाड़ियों ने केक काटा और हल्ला गुल्ला भी किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का शानदार आगाज। जनूबी अफ्रीका को बड़े मार्जिन से हराने पर पॉइंट्स टेबल दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। भारत तीसरी से चौथे पोजीशन पर चला गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलियन कप्तान एलिसा हैली ने मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर की।
اور سائنس فکشن فلم ٹرون ایریز ریلیز ہوتے ہی چھا گئی. پہلے ہی ہفتے $66 ملین سے زائد کا بزنس کر کے باکس آفس پر پہلا نمبر حاصل کر لیا.